Hello everyone, I welcome to all of you in your channel Learning India. I am B.S. Gwal. Today is the lesson is active and passive voice. Active and passive voice. Today is the lesson active and passive voice. कर्मवाच और कृत्यवाच ये दो तरह के होते हैं. You should be properly learn this everything in detail. This is all are very affirmative sentence. These all are the affirmative sentence. How do you change in passive voice? As first time you must be know what is the active, what is the passive voice. When the subject is active, when the subject is active, that is the passive voice. When object is the action like that is the passive voice. सिंपल समझना, आपको कैसे समझना है? सिंपल. आपको डीपली जाते हुए इसको सिंपल समझना है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है. वी ऑलवेज स्पीक इन एक्टिव वॉइस. We always speak in passive, but sometimes, like the newspaper, we have to speak in passive voice. So please, I am going to start. Listen carefully. Present tense. I have taught already. How many tense? 3 tense. Present, past, future. Or there are 4 forms. Each tense is the 4 forms. Indefinite, continuous, perfect, continuous. I eat a mango. I eat a mango. मैं एक आम खाता हूँ. मैं एक आम खाता हूँ. Suppose you want to speak in passive voice. आप कैसे बोलेंगे? A mango is eaten by me. आम मेरे द्वारा खाया जाता है. आम मेरे द्वारा खाया जाता है. हम इतना वो लंबा नहीं बोलते हैं. मैं आम खाता हूँ ऐसे बोलते हैं. इफ़ यू आर लर्न एनी लैंग्वेज, आपको सब कुछ पढ़ना है क्लियर करते हुए. एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये क्या होता है आपको क्लियर आपको समझना है. ए मैंगो इज ईटन बाय मी. मैंगो इज ऑब्जेक्ट, हियर इज द सब्जेक्ट. ओके, आई इज द सब्जेक्ट, हियर इज द ऑब्जेक्ट. जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं आपको ये यूज़ करना है, पर डीपली आपको बिल्कुल नहीं जाना है. आपको एक्टिव वॉइस में बोलना, पर ये नॉलेज सब स्टूडेंट को होना चाहिए. हु आर द स्टूडेंट, टीचर्स, ऑलवेज फॉलो दिस रूल एवरीथिंग. वेरी सिंपल सेंटेंस, वेरी सिंपल ए मेथड. 12 सेंटेंस आई हैव गिवन एवरीथिंग. अदरवाइज दिस इज द 10 days course, 15 days course. Each by one. Interrogative, also negative, models. How can you do? I am eating a mango. Continuous. I am eating a mango. I am eating a mango. Continuous. मैं आम खा रहा हूँ. A mango is being eaten by me. आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है. You should be know कि if there is coming, we always use ing, but here is no any ing. यहाँ ing ये बिल्कुल नहीं है. But in passive voice we don't use ing. Okay, always all are third form. verb के जितने भी फॉर्म है थर्ड फॉर्म आपको यूज करना होगा. I have told already many times, if you don't know form of the verb, I think lot of problem for your speaking, please. That's why you should learn every day 10 forms and maybe 200, 300, 400 must be you have to learn. Okay, now you have to come perfect. I have eaten a mango. मैं आम खा चुका हूँ. A mango have been eaten by me. आम मेरे द्वारा खाया जा चुका है. I have said you don't be translate. You don't be translate. I try to teach total English, but sometimes you have to listen also Hindi. Suppose you don't understand English to English, so that's why I will be also speak our mother tongue. Now you should become past tense. I ate a mango. I ate a mango.
I ate a mango was eaten by me. I ate a mango. मैंने आम खा लिया है, आम मेरे द्वारा खाया जा रहा था, ओनली थी. I was eating a mango was being eaten by me. Same, I had eaten a mango had been eaten by me. I have told already perfect future continuous is not going to passive voice. Same perfect continuous. Now you can future tense please. I shall eat a mango. I have talked already, you don't use shall. But here is a good, no problem. Now you can also will. I will, okay, but I put shall. Shall is you use only I and we. When you are going to press and forcing, so you must use will. If a problem, you don't put shall. But shall is used only I and we. That's why I put here. I shall eat a mango. I shall eat a mango. A mango shall be eaten by me. Same, eaten. Okay, understood? By me. I shall be eating a mango. इसमें बिल्कुल नहीं होता है. Okay, understood you? Then you come perfect. I shall have eaten a mango. मैं आम खा चुका हूँगा. A mango shall have eaten by me. Continuous बिल्कुल नहीं होता है. तो please, I am telling to you this active and passive verb. This is the affirmative sentence. This is the only affirmative sentence. Suppose if I was saying, do I eat a mango? So that is, first you have to learn this clear sentence. This have to clear. Also you have to let, the use of let. आपको एक साथ नहीं सीखना, एक साथ आपको प्रॉब्लम हो जाएगा. जिनको इंग्लिश बेसिक चल रहा है, बहुत धीरे से सीखना है. ये एक्टिव वॉइस क्या है, ये पैसिव वॉइस क्या है, आपको समझना है. हम हमेशा एक्टिव में बोलते हैं. वी ऑलवेज स्पीक इन एक्टिव वॉइस. डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नरेशन, वो भी हम डायरेक्ट में बोलते हैं. बट वी शुड बी नो ऑल्सो इनडायरेक्ट नरेशन. वो चैप्टर बाद में चलेगा. आपका बहुत सारी अभी टिप्स है. फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. तो प्लीज, आई इज द सब्जेक्ट. इट इज द वर्ब. Okay, subject, verb, object. Okay. When you use always third form of the verb. Subject, verb, object. Okay, subject, verb, object. Subject, verb, object. What is the subject please? Who is going to action? जो एक्शन करेगा, जो कौन कर रहा है इसमें एक्शन? I. Verb is the eat. Verb is the is. Object is the mango. I is the subject. Eat is the verb. Mango is the object. अब आपको पढ़ेंगे सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस प्लस इज प्लस थर्ड फॉर्म बाय मी. तो आपके लिए बहुत लंबा हो जाता है. ये क्या हो जाता है? लंबा. मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म, आपको इसको बहुत बात में प्रैक्टिस करना है. फिर जाके इसके लिए आगे क्वेश्चन का, फिर मॉडल वर्ड, फिर लेट. हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है. क्या चलना है? हमको जंप नहीं करना है. हमको क्या नहीं करना है? जंप नहीं करना है. इसका कोर्स बहुत बाद में होता है. मैंने आपको पहले वो दे दिया, नो प्रॉब्लम. Step by step. Then after indirect and direct and indirect. This everything for speaking language. Please, I am going to revision mode. Listen all of you carefully. I eat a mango. A mango is eaten by me. I eat a mango. A mango is eaten by me. I am eating continuous. A mango is being eaten by me. Same eaten by me. I have eaten a mango. A mango have been eaten by me. I have eaten
आई हैव बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट से आम खाई जा रहा हूँ। आपको फॉर लगाने की कोई जरूरत नहीं, वेरी शॉर्ट फॉर्म इसका नहीं होता है। नाउ यू कम पास्ट टेंस, आई एट ए मैंगो, ए मैंगो वॉज ईटन बाय मी, ए मैंगो वॉज ईटन बाय मी, आई वॉज ईटिंग ए मैंगो वॉज बीइंग ईटन बाय मी, I had eaten a mango had been eaten by me. Perfect कंटीन्यूस में बिल्कुल नहीं होता है। Now you come future tense, I shall eat a mango shall be eaten by me. I shall be eating a mango, not happening, बिल्कुल नहीं होता है। I shall have eaten a mango shall have been eaten by me, I shall have been eating a mango, इसमें भी नहीं होता है। Who are the new student, जो नए स्टूडेंट बेसिक लैंग्वेज में इसको समझ में नहीं आता है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू हैव राइट 20 टाइम्स 50 टाइम्स, देन यू ऑल्सो ट्रांसलेट इनटू हिंदी, आपको हिंदी में भी लिखना है। बट आफ्टर व्हेन यू लर्न दिस 12 सेंटेंस यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। How do you do interrogative? How do you do negative? Same is like the active passive voice. Affirmative sentence. Oh, this is the affirmative sentence. Shvikaratamang. Not a simple like. Simple is the like is Adam. This is a pen. He was a boy. There is a simple sentence. This is all are affirmative sentence. When the model come here, that is the tips of sentence. And when the here do I eat a mango, how do you change in passive voice? But at first time you should be understand very well this active and passive voice. जो कैंडिडेट नहीं है, जो क्या है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, इतना फोकस नहीं जाना है, फिर भी आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। यदि हमको ये बेस नहीं आएगा, हमको इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन प्लस स्पीकिंग, वैसे तो हम लोग ग्रामर बिल्कुल नहीं सिखाते, फिर भी ग्रामर का पोर्शन एक्टिव पॉसिव वॉइस में आता है, ग्रामर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब ग्रामर में आता है। बट आई एम टीचिंग स्पोकन कोर्स, तो आपको स्पीकिंग कोर्स में इसको लेकर चलना है। यू ऑलवेज यूज इन द थर्ड फॉर्म ईटन। आई एम सेइंग मेनी स्टूडेंट वो टेलिंग मी सर इज यूज ओनली विद द कंटिन्यूअस आईएनजी, वर्ड इज यूज ओनली कंटिन्यूअस। अब कौन सी इंग्लिश हमें पढ़ा रहे हैं जो इसके साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है, वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है, शैल हैव बीन का थर्ड फॉर्म आ रहा है? नो, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दिस इज द एक्टिव एंड पैसिव, दैट्स व्हाई। तो you should be understand very well, you must be know, if you will practice many times, if you will practice many times, then you will be understand. Not only once a time, not only once. मैंने आगे पहले भी बताया आपको साइकिल कैसे सीखा आपने, एक बार जंप करते हैंडल पकड़ते आपने सीखे थे? नहीं, many times। आप उठे गिरे, उठे गिरे, चोट भी आएगा। Same you follow any language. If you learn systematically, if you learn deeply, I think within 1 month you will be very good speaking English without any hesitation. But as first time you should be speak slowly. Don't go very fast. Don't go फिर very fast. जब आपको ये सब आ जाएगा, फिर किस ढंग से हमको कहानी कहना है, किस ढंग से हमको भाषण देना है, ये सारी चीज़ आपको ये बताया जाएगा। ये स्पीकिंग कोर्स नहीं है, दिस इज ओनली आपको मोटिवेट, हर चीज़ को आपको समझना है। खासकर मैं उन पेरेंट्स से कहता हूँ जो बच्चे अपने रास्ते से हटकर गलत वो रास्ते में जा रहे हैं, उनको आप फोकस करिए, उनको आप फोकस करिए, उनको इतना टाइम दीजिए, इतना व्यस्त करिए कि कहीं वो बिल्कुल नहीं जाए। I have seen many students online studies going, but they are playing game in the mobile. I have seen. कहते कि सर हम तो ऑनलाइन से पढ़ रहे, I have seen just they are playing. Why? इसमें कमी होती है पेरेंट्स की, किसी कमी होती है पेरेंट्स, वो अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं देखते। जिस तरीके से एक पौधा होता है
छोटा पौधा उसको चारों ओर से घेरा बांधी करते हैं। क्या करता है? घेरा बांधी। वही एक माँ बाप का काम होता है। जब वो अपने बच्चों को इस छोटे से 9th 10th में 8th में नहीं देखेंगे तो दिस विल बी मिस्टेक टू द पेरेंट। ये गलती उनकी माँ बाप का होगा। टीचर तो उनको बनाएगा, वो तब बनाएगा जब मम्मी पापा उसको छोटे पौधे की तरह उसको संभालेंगे। पानी देना है, खाद देना है, सिंचाई करनी है, निराई करनी है, गुड़ाई करनी है, ये सारा काम पेरेंट्स का है, मम्मी पापा। फिर टीचर उसको आगे बढ़ाएगा। पेरेंट्स, स्टूडेंट एंड टीचर is the main base of the progress for the country. So please, I have said many times, if you want to learn like this, आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो सही, पर समझ में कुछ भी नहीं आएगा। क्या पढ़ा रहे, क्या है ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, क्या है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्या है, पर हमको सीखना है। पार्टिकुलरली आई एम टेलिंग दोज हु इज गोइंग टू स्कूल, स्टूडेंट्स, उनके लिए ये बहुत ही जरूरी है। और ये इसका अभी बेसिक कोर्स है। ये क्या है? इसका बेसिक कोर्स है, ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस। आप इसका इंट्रोगेटिव नहीं है, इसका मॉडल यूज नहीं है, लेफ्ट का प्रूफ, बहुत सारे रूल है। यदि आप इन सेंटेंस को सब आप समझ जाएंगे और बोलते समय आपको ये नहीं देखना है कंटिन्यूस कंटिन्यूस, ये कुछ नहीं देखना, ऑटोमेटिक आपके मुंह में आएगा। तो प्लीज आई एम गोइंग टू मोर रिविजन टू यू। आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, ए mango is eaten by me. I am eating a mango is being eaten by me. I have eaten a mango has been eaten by me. Perfect continuous tense not happening. I ate a mango was eaten by me. I was eating a mango was being eaten by me. I had eaten a mango had been eaten by me. I had been eating a mango, cross, future tense. A mango, I shall eat a mango shall be eaten by me. I shall be eating a mango, cross. I shall have eaten a mango shall be eaten by me. I shall have eaten a mango, this is cross. इसमें नहीं होता है। Today is the important chapter, active and passive voice. For speaking, we always use active voice. You don't be press your mind for all the rules like indefinite, continuous, perfect. What is that? But you should be know forms of the verb. I have told many times already. Please, every day 5 word meaning, 5 sentence, 5 forms of the verb. ये 3 मेन पॉइंट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। यदि हमको एवरी डे 5 वर्ड्स, 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ड या 5 सेंटेंस या 10 सेंटेंस डेली बेसिस हमको यूज करना एवरी डे। फिर उसके बाद चलता है फ्रेजर्स, मुहावरे। जिसको फ्रेजर्स आ गया तो इंग्लिश बोलना कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक टुडे you will be understand about the active and passive voice. और every day 1 hour 2 hour you don't forget for practice. मेरा सबसे एक नेम होता है, मेरा कोर्स सिर्फ 10 दिन का होता है, फॉर ओनली 10 डेज। हमारे कोचिंग सेंटर में वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये बड़े बड़े कोर्स पढ़ाए जाते हैं। ये ऐसा इंग्लिश स्पीकिंग तो होता है फिर कि सिंपल 10 days 10 hour every day, 10 days 10 hour every day. If you will be speak each day 10 hour, I think within the 10 days you will just like the British people, and you will be speak like the American style, British style, Australian style. जब आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा वो लैंग्वेज अपने आप को घूमेगा ऑटोमेटिकली। Suppose you are going to foreign country, you should know the English. हमको चाइना आ रहा है, जापानी आ रहा है, स्पेनिश आ रहा है, डच आ रहा है, बट इफ़ यू गो चाइना यू कांट स्पीक चाइना। उनको सिर्फ इंग्लिश आता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड है। हिंदी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। इंग्लिश इज बहुत महत्वपूर्ण हमारा वो भाषा है। तो फिर भी ये इंग्लिश दुनिया में सबसे प्रसिद्ध भाषा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू,
You have to hard work every day, don't practice, and within a few days you will be speaking fluently. आपको कमिट करना, मुझे जो भी कोई परेशानी आपकी समझ में नहीं आता, यू हैव टू राइट कमिट बैक्स. आप लिखते नहीं, क्यों? आप देखते नहीं, आपको देखना है, आपको वो लिखना है. कोई आपको समझ में नहीं आया तो कमिट बैक्स आपको वो लिखना है. प्लीज, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडर एक्टिव एंड पैसिव वर्ड्स. व्हाट इज द एक्टिव एंड पैसिव वर्ड? देन आई विल बी राइट. ओके, आपको मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी वॉइस उज्जवल कर रहे हैं. यू आर ग्रेट मैन, ग्रेट पीपल, ग्रेट स्टूडेंट. I wish to all of you. Thank you very much.